پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جہلم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا جو مفرور اور سزا یافتہ ہے اس نے ساری کابینہ کو لندن بلا لیا۔ چوروں کی ساری کابینہ قوم کے پیسے پر مفرور کو ملنے لندن جا رہے ہیں۔ یہ سب لندن جا کر اس سزا یافتہ شخص سے انسٹرکشن لیں گے۔ قوم کو 20 مئی کے بعد اسلام آباد آنے کی دعوت دوں گا۔ عمران خان نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو مفرور ہے، جو سزا یافتہ ہے، جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے، جو اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن میں رہ رہا ہے، اس نے ساری کیبنٹ کو لندن بلا لیا ہے۔ یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے۔ آصف زرداری، تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے۔ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے، لانچوں کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ڈالرز تم نے دبئی بھیجے ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے۔ شہباز شریف، شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر۔ میر جعفر نے اس سے غداری کی اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا جس طرح امریکنوں نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا۔ تم ہو میر جعفر۔ آتے ساتھ ہی کہ ہم تو جی نریندر مودی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا۔ کیا شہباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور 30% کم تیل خریدو؟ مجھے سب سے زیادہ شرم کب آئی جب مجھے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے، جب قرضہ مانگنا پڑا کیونکہ انہوں نے دیوالیہ نکالا ہوا تھا ملک کا۔ مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے قرضے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ بیکاری بنایا کس نے؟ آپ نے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل لندن میں نون لیگ کی اہم مشاورتی اجلاس میں شرکت کے لیے آج روانہ ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اہم فیصلہ متوقع ہے۔ پی ٹی آئی نے شہباز شریف کی لندن آمد پر احتجاج کی کال دے دی۔ حسن نواز کے دفتر کے باہر مظاہرہ ہوگا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی غلام حسین آوان، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت ہم لندن کے اندر جو حسن نواز کا دفتر ہے اس کے سامنے موجود ہیں۔ کل یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور کابینہ کے دیگر ارکان جو ہے وہ یہاں پر رہیں گے اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی دفتر کے اندر جو ہے وہ کل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اہم جو ہے وہ یہاں پر مشاورتی اجلاس ہوگا اور جس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اہم گفتگو ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مشاورت ہوگی اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پاکستان جانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر کل اہم فیصلے جو ہے یہ متوقع ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پر برطانیہ کے اندر رہنما ہیں انہوں نے عین اس وقت جو ہے وہ یہاں پر مظاہروں کا بھی اعلان کر رکھا ہے اور ہمیں یہ ذرائع نے بتایا کہ یہاں پر مسلم لیگی کارکنان کو بھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو تصادم سے بچنے کے لیے جو ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر پولیس کی تعداد بھی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ جی خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا۔ آپ رہی 92 نیوز یو کے ساتھ۔ مانچسٹر برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں اسلامک چیمبرز آف کامرس کا تجارتی اجلاس ہوا جس میں برطانیہ بھر سے بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی چودھری محمد افضل تھے جنہوں نے آئی سی سی کو مسلم بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بہترین تحفہ قرار دیا۔ مزید تفصیلات عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں اسلامک چیمبرز آف کامرس کا اہم اجلاس ہوا جس میں برطانیہ بھر سے بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے
भरपूर शिरकत की। इस मौके पर ICC के रूह रवां बैरिस्टर ज़िशान मियां, MP मोहम्मद अफजल, अदनान जमील, डॉक्टर मलक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में काफी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी बिजनेस कर रही है। हमारी कोशिश है कि ICC के जरिए हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ऐसा लिंक बना दें जिसके जरिए मुस्लिम कम्युनिटी अपने बिजनेस को इस्लामिक तर्ज पर प्रमोट कर सके, अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार कर सके और फिर उसे फरोख्त भी कर सके। मुकर्रीन का कहना था कि पहले मरहले में बरतानिया में कायम बड़े बिजनेस को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका बाकायदा आगाज बरतानिया से हो। उसके बाद इस सिलसिले को दुनिया भर में फैलाया जाएगा। इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रोफेशनल टीम बिजनेस के जिम्मेदारों को बाकायदा ट्रेनिंग भी देगी और बिजनेस को प्रमोशन का बंदोबस्त भी करेगी। इस दौरान जूम के जरिए दुनिया के दीगर ममालिक से भी अहम शख्सियात ने इस तारफी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर MP मोहम्मद अफजल, बैरिस्टर ज़िशान मियां, अदनान जमील, डॉक्टर अकबर अली मलक, ताहिर चौधरी, डॉक्टर पाशा और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके बिजनेस टू बिजनेस एक दूसरे से लिंक करना ICC का एक बड़ा कारनामा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द इसका हिस्सा बनकर अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि दुनिया की इकॉनमी में मुस्लिम बिजनेस का भी एक रोल हो। आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम मैनचेस्टर की कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि ICC क्या है एग्जैक्टली। हमने सारी सर्विसेज हमारी प्रोवाइड जो हम करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमने वो एक्सप्लेन किया और हमने जो यहाँ पर इकट्ठे हैं उनको ये एक्सप्लेन किया कि वो ICC ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सपोर्टिंग मेंबर्स भी हैं, हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली रन करेंगे। यहाँ की कम्युनिटी के बिजनेस लोगों को इंट्रोडक्शन दी जाए तो लेकिन बात बहुत सिंपल सी है। अगर 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, अगर प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हमारे में होगा तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यूरोपियन यूनियन पूरा जो है इसे 500 मिलियन सिर्फ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो ये वो पोटेंशियल है हमारा जो लेटन है, जिसको हम कैश नहीं कर सके। तो उसके लिए हम सबको दर्द होना चाहिए और काम करना चाहिए। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारे फलाही काम कर रही है, जिनमें से उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं दूसरे मुस्लिम ब्रदर्स के साथ और अपनी प्रोडक्ट सेल कैसे कर सकते हैं टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऑफ मुस्लिम। इससे मुस्लिम मनी ज़्यादा रोटेशन में आएगी, मुसलमानों की वेलफेयर होएगी और आपको पता है जितनी ज़्यादा कनेक्शन ट्रेड कनेक्शन डेवलप होंगे उतनी ज़्यादा यूनिटी आएगी और वेलफेयर होएगी। इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो ICC है, इसका बेसिक मकसद यही है कि जो मुसलमान हैं इनको एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, एक नेटवर्क पे लाया जाए जहाँ से मिलकर एक दूसरे के साथ कारोबारी जो मामला हैं उनको तय कर सकें और एक दूसरे के कारोबार को फ़रोग दे सकें। तो इस हिसाब से इस हवाले से ये बड़ी एक कामयाब तकरीब थी जिसमें काफ़ी नेटवर्किंग का लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये बड़ा अच्छा एक बारिश का कतरा है कि तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक यूनिटी पैदा की गई और उसमें ये कोशिश की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिज़नेस के लिए तैयार किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और इसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। ये बड़ा अच्छा आइडिया है जी मुसलमान कारोबारी हजरात को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है बड़ी वाइब्रेंट है और उनके बिजनेसेस में बड़ी कामयाबी की कहानियाँ हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने की जो कोशिश की जा रही है, मियां ज़ीशान साहब और अदनान जमील साहब जो कोशिश कर रहे हैं, हम उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सारे मुसलमानों को दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अमेरिका में हो, ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, उनको देना चाहते हैं ताकि बिजनेस टू बिजनेस हमारे अंदर बिजनेस को फ़रोग मिले। जो 1.8 बिलियन मुसलमान है दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, ये किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें और एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं। हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स और हमारे फ़िरके इनको साइड पे रखें और हम मुसलमानों में यूनिटी को डेवलप करें और यूनिटी को प्रमोट करें। It's been very interesting tonight's event, especially about networking, liaising and getting to know a lot of other businesses. Like myself, I'm a business person, I'm a practitioner, I do loads of other stuff, I'm a singer as well, and it's good to know other people as well. So I'm happy tonight. I'm happy that I've come here and networked. इस मौके पर शुरका का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को बिजनेस के जरिए एक जगह लिंक करना वक्त की अहम जरूरत थी, जिसका आगाज करके इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बरतानवी मुस्लिम कम्युनिटी की इज्जत और तरक्की में इजाफा किया है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की रियासत में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के अहदेदारों से मुलाकात बोले दौरे सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा, जिसमें तालीमी अमूर के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देंगे।
मुलाकात के दौरान वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना था कि सऊदी अरब की जानब से तालीम के शोबे में बेपनाह तरक्की हो रही है और इस्लाहात के जरिए तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारतों की जानब से ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया जा रहा है, जिसके जरिए दोनों ममालिक तालीमी मैदान में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। वफाकी वजीर ने बताया कि सऊदी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप में भी इजाफा किया गया है। सऊदी अरब में मुकीम मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों के इस मौके पर कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी नवाज शरीफ का हर अव्वल दस्ता है। हमें उम्मीद है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए भरपूर तवज्जो देंगे। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर, सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट, जहीर अहमद मुगल, जराल बलोच और दीगर शख्सियात शामिल थीं। पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सबसे मोतबर इदारे आई कैप के यूएई चैप्टर की जानिब से मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर हादी शाहिद के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। तकरीब में आई कैप यूएई चैप्टर, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई के अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। आई कैप पाकिस्तान यूएई चैप्टर की जानिब से दुबई में शानदार ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर हादी शाहिद थे, जिनकी खिदमात को सराहते हुए अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में दुबई में मुकीम पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की अहम मेंबरान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि आई कैप पाकिस्तान का मोतबर तरीन इदारा है, जिसने काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा किए, जिन्होंने दयारे गैर में मुल्क का नाम रोशन किया। मेहमानों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आई कैप यूएई चैप्टर के चेयरमैन यासिर गाडित, आई कैप यूएई चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी सैयद आसिफ जमान और मेहमान खुसूसी डॉक्टर हादी शाहिद का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आई कैप पाकिस्तान से फारिग व तहसील चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारी अभी इससे काफ़ी बात चल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे कि पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेंबर हैं और हमने पहला जो इनका जो ऑफिस है आउट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑफिस वो यूएई में कायम हुआ है। और हादी साहब जिनको आज हमने अवार्ड भी दिया, तकरीबन 45 ईयर से यहाँ पे उनकी खिदमत है, गरा खिदमत है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंसी नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड अदर देन पाकिस्तान कम्युनिटीज ऑल्सो। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 850 मेंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान से आई कैप से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान के क्वालिफाइड मेंबर्स हैं। अदर देन दीज क्वालिफाइड मेंबर्स हमारे पास अनक्वालिफाइड मेंबर्स अराउंड 1,500 के करीब हैं। वी गॉट लार्ज कम्युनिटी। अच्छी बात यह है कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, मल्टीनेशनल्स में, लिस्टेड कंपनीज़ में, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में, अपनी प्रैक्टिस भी है काफ़ी सारे लोगों की। तो ये एक नेटवर्किंग हमने सोचा कि जो है वो ईद का एक ओकेजन है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए वी शुड गैदर। आई कैप एक पाकिस्तान का अजीम इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं और एक बहुत बड़ी बॉडी है पाकिस्तान की। यूएई में हम माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और यूएई का चैप्टर जो है वो वन ऑफ द एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैप्टर्स दुबई में हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं मेंबर्स को और एक्टिविटीज़ को करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया। कोविड के बाद से जो एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हुई थी, अब उसका शायद रिवाइवल का टाइम आ गया, तो आज ईद मिलन पार्टी उसी सिलसिले में थी। उनका मजीद कहना था कि आई कैप यूएई चैप्टर की 850 क्वालिफाइड जबकि 1500 से ज्यादा नॉन क्वालिफाइड मेंबर हैं। ये तंजीम दयारे गैर में नौकरी करने वाले पाकिस्तानियों की भरपूर मुआवनत कर रही है। आई कैप यूएई चैप्टर का मकसद है कि उनके मेंबरान पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। आखिर में मेहमानों की रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर और JUI फे के मरकजी रहनुमा मुफ्ती अब्दुल शकूर के एजाज़ में JUI फे अमारात के अमीर जाहिद नदीम की जानिब से ज़ोहराना दिया गया। तकरीब में PDM के रहनुमाओं समेत पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियाँ मुनीर हांस ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर बतौर वजीर अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर अमारात पहुँचे, जहाँ उन्होंने UAE हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में होने वाले सेमिनार से खिताब किया। ज़ोराने के मौके पर वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान की हुकूमत को आईनी तरीके से खत्म किया गया। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। उनका मशवरा है कि अब वो चुप कर बैठ जाएं और मुल्क को तरक्की करने दें। आईनी तरीके से हमने उनका खात्मा किया है
हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को जिस अंदाज से तबाह कर दिया, पाकिस्तान का बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया, मईशत तबाह कर दी, महंगाई आसमान तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से उनको तो मशवरा यही है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि आराम से बैठ जाए। हज पॉलिसी के हवाले से उनका कहना था कि वो हज पहले से भी सस्ता करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनसे वादा किया है कि हाजियों को सहूलतें देने और हज फीस को कम करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहली कैबिनेट की मीटिंग, हालांकि इस मौजू पर भी नहीं था, उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि हाजियों को सहूलतें देने के हवाले से और हज को सस्ता करने के हवाले से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका साथ दूं। तो उन्होंने अज़म का इजहार किया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम हाजियों को बेहतरीन सहूलत देने के लिए अब जा रहा हूं। अभी मैं रियाज जा रहा हूं यहाँ से, और यहाँ से सीधा मदीना मनौरा और मक्का मुकरमा जा रहा हूँ और ख़ुद उन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लूँगा, उनकी रिहाइशों का, उनके खाने पीने का, उनके ट्रांसपोर्ट का, ताकि हाजियों के हवाले से कोई मसला ऐसा न रह जाए कि उनके लिए तकलीफ का बायस बन जाए। तकरीब के मेज़बान जाहिद नदीम, पीपी गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस और दीगर का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो मुफ्ती अब्दुल शकूर को UAE आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वजीर ने ओवरसीज के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब वफाकी वजीर बनने के बाद पहली दफ़ा एक मुत्तहिदा अरब अमारात आए, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद नदीम साहब का कि उन्होंने उनसे मुलाकात का एहतमाम किया और मुख्तलिफ हवालों से उनसे जो डिस्कस हुआ, स्पेशली सऊदी अरब और हज उम्रा के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों पे, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे इंसान हैं। मुफ्ती साहब का यह पहला टूर था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेहतरीन खिताब किया। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये हम दुबई में रहते हैं, इमारात में रहते हैं, यहाँ के कवानीन का हम एहतराम करें। हकीमुल अरब शेख ज़ैद रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात है ये सारी दुनिया का मुल्क है। जो लोग यहाँ कवानीन का एहतराम करेंगे ये उन सब का मुल्क है। यहाँ रोटी रोज़ी कमाएँ और यहाँ पे कवानीन का एहतराम करें। मुफ्ती अब्दुल शकूर का मजीद कहना था कि वो UAE से सऊदी अरब जा रहे हैं, जहाँ वो हज हुक्काम से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तानी हाजियों के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मेहमानों की रवायती कबायली व पाकिस्तानी खानों से तवाज़ुह की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, अबू ज़हबी, मुत्तहिदा अरब अमारात। जर्मनी के शहर बॉन में हालिया 2 रोज़ा डायलॉग 2030 कॉन्फ्रेंस का इनाकाद वजारत इक्तसादी ताउन और तरक्की के ज़ेर तमाम हुआ, जिसमें जर्मनी भर से शहरी, म्यूनसिपलिटीज़ और ज़िले इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बॉन से हमारे नुमाइंदे इमरान महर अपनी इस रिपोर्ट में। आलमी सतह पर मुतादिद शहर, म्यूनसिपैलिटीज और इजला पहले से ही पायदार तरक्की के लिए अज़म कर चुके हैं और एजेंडा 2030 और उसके पायदार तरक्की के 17 अहदाफ को नाफिज करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखी हुई हैं। बॉन शहर की मेयर काटिया डियोनर ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि शहरी इंतजामिया और शहरी मिलकर पायदार तरक्की के 17 अहदाफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और तरक्की की रफ्तार को भरपूर अंदाज में तेज करना होगा, क्योंकि 2030 तक अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के शहर श्वाइनफुट से ताल्लुक रखने वाली मेयर सोरिया जिना लिपर्ड ने शिरकत की। सोरिया लिपर्ड की पैदाइश कराची में हुई और पाकिस्तान से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। 92 न्यूज से बात करते हुए उनका पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीलियों और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के हवाले से कहना था, डायलॉग 2030 एक इवेंट का नाम है जिसमें शहरी इंतजामिया, NGOs, हुकूमती और पॉलिसी साज अदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पायदार तरक्की के अहम मकासद को अमली जमा पहनाने के लिए एक रोड मैप पर मुसलसल काम कर रहे हैं। This the time for action. This is the motto of the conference, and it is not only about the government, it is also about all kinds of NGOs and the civil society as such, that we understand what can we do, how can we do it, and how can we cooperate, because obviously we all are living on this one planet and we understand that the climate change is affecting us all. We see it on the news in Germany every day at the moment that Pakistan is going through a severe heat wave, and we need to find the right tools to at least slow down the process. 2 दिन का इवेंट है, इसका मेन फोकस जो क्लाइमेट चेंज के असरात म्यूनिसिपल लेवल पे हैं उनको डिस्कस करना है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उस पे क्लाइमेट चेंज के काफ़ी असरात हैं और जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उनको बहुत चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में म्यूनिसिपलिटीज़ एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं
उन चैलेंजेस को कोप करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट के इस सिलसिले में काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, म्यूनिसिपल पार्टनरशिप्स प्रोग्राम्स हैं जिस पे पाकिस्तानी म्यूनिसिपलिटीज़ जर्मन म्यूनिसिपलिटी के साथ पार्टनरशिप्स के ज़रिए काफ़ी नो हाउ ले सकती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या SDG से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे एक्सपर्ट मिशंस फाइनेंस करवा सकती हैं और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जिनके फ़ायदे उठा सकती हैं पार्टनरशिप्स के ज़रिए. Platform for local authorities, for cities and towns in Germany to talk about local agenda 23, to localize the agenda, to localize SDGs, and it's a follow-up actually to the conference we had last year. First of all, I'm happy with the event. I think it was very interesting to exchange views with all the people that come from different cities all over the country, and they present their views, and we had people from the administration, we had people from politics, we had people like me from civil society, and I think it's really important that we keep this exchange up. Just keep talking about what we can do better. पाकिस्तान गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं. आप प्लान तो बना लेते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन आपको जो अवेलेबिलिटी है उसको नहीं देखा जाता. ये जो एक प्रैक्टिस है ये हमारे यहाँ सिस्टम में हर चीज़ में है कि डायरेक्ट आप जो है वो आसमान को छूने की बात करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखते हैं कि आसमान तक पहुँचेंगे किस तरह. 2 रोज़ा डायलॉग 2030 कॉन्फ्रेंस में मुंतज़मीन ने मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जिनमें बालखुसूस ये जानने की कोशिश की गई कि म्यूनिसिपैलिटीज किन शुबों में तब्दीली के अमल को आगे बढ़ाने के लिए ज़राए और एहलियत में इजाफा कर सकते हैं ताकि तरक्की की रफ्तार को तेज़ तर किया जा सके.